Good morning, students. The topic that we are going to see today in our chapter for business services is functions of commercial bank. We have already seen what do you understand by commercial bank, that is whose main task is to accept deposits and lend the money, that is it act as a intermediate between those who have money and those who require money. So now let us study this primary or the basic functions that each and every commercial bank performs. The very first function is acceptance of deposits. Now, bank it act both as a borrower as well as the lender of money. इसका मतलब क्या है? As a borrower, ठीक है, वो लोगों के पास से savings accept करता है and then in return they pay interest to the saver. So in this sense it act as a borrower. At the same time it also act as a lender. It means that whoever requires the fund, वो whatever money it has received, it just lend that money to the borrowers and in return gets interest from the same. So in this sense, bank becomes both the borrower as well as the lender. Now, whatever deposits are accepted from public, whether it is a normal day-to-day consumer or whether it is a businessman, okay, it opens. These deposits are generally taken in three forms: by opening a current account, by opening a savings account, or by opening a fixed deposits account. Now, what do you understand by these accounts? Current account. This type of account, it is usually opened by the large businesses, businessmen, entrepreneurs, professionals who want to deal in day to day transactions. ठीक है, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को डील करने के लिए they have to open a current account. Sorry. So what is the main task of current account or why these current accounts are open? So that in order to meet, जब numbers of transactions है, बहुत बार पैसों का लेन देन किया जाता है for a businessman, for that purpose usually a current account is open in the bank. तो दिस करंट अकाउंट इट इज यूजुअली हमने ना इसमें आपको पैसे डालने के लिए कोई लिमिट है, ना इसके पैसे विड्रॉ करने की कोई लिमिट है, ना ही नंबर ऑफ टाइम्स आप जो विड्रॉ कर सकते हो या आप डिपॉजिट कर सकते हो उसके ऊपर भी कोई भी लिमिटेशन नहीं है. सो इट इज वन ऑफ द फैसिलिटी दैट इज प्रोवाइडेड बाय बैंक टू दी एंटरप्रेन्योर्स और दी बिजनेसमैन सो दैट दे आर एबल टू मीट विद डे टू डे ट्रांजेक्शन्स. एंड इवन जो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है, जैसे अपने अकाउंट्स में शायद आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रा एंट्रीज के बारे में, जब बैंक जो कैश बुक मेंटेन करती है, यूजुअली कॉन्ट्रा एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑफ द बिजनेसमैन. तो कॉन्ट्रा एंट्रीज मतलब क्या है? दैट इज when both cash and bank balances get affected for an entrepreneur or for an businessman, that type of entries they are recorded in the contra entries. So these contra transactions or contra entries are also recorded in the current account of a bank, which is on the behalf of the businessman. Now the sorry. Now the second type of account that is maintained by the commercial bank is savings account. So savings account are usually opened by the normal individual so that we can encourage savings into them. इसमें बैंक उनको जो भी इंडिविजुअल्स ने सेविंग अकाउंट खोला होगा बैंक में, बैंक यूजुअली पेज दी रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज डिसाइडेड बाय दी आरबीआई. यहाँ तक कि जैसे करंट अकाउंट में हमने देखा कि जब चाहे बिजनेसमैन जितना अमाउंट चाहे, कब चाहे, जितने नंबर ऑफ टाइम चाहे वो विड्रॉ कर सकते हैं. जबकि सेविंग्स अकाउंट में क्या है? देयर इज अ लिमिटेशन बीन इम्पोज ऑन विड्रॉवल ऑफ दी मनी. कुछ रेस्ट्रिक्शंस है इन रिगार्ड्स टू अमाउंट. जैसे 50 ऑन अ डे आप सिर्फ 50,000 तक ही विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप 50,000 तक ही डिपॉजिट कर सकते हो. 50,000 के ऊपर अगर आपने डिपॉजिट किया देन यू विल बी आस्क्ड टू शो दी पैन कार्ड और दी आधार कार्ड. जबकि करंट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं, इवन आप लाख लाख करोड़ करोड़ में भी आप अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो. जबकि सेविंग्स अकाउंट में ये एक रिस्ट्रिक्शन होता है. तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में बेसिक डिफरेंस क्या है? सो करंट अकाउंट इज ओपन बाय द लार्ज बिजनेसेस टू एनकरेज द बिजनेसेस और टू एनकरेज द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस दैट इज टेकिंग प्लेस within the business premises with no restrictions on the amount of funding or no restrictions on the withdrawal or no restriction on the types number of times. Whereas in savings account it is usually opened by the normal individual to encourage the saving habits among them. So there are basic some restriction as far as the amount of deposit is concerned, as far as the amount of withdrawals are concerned, and even the number of times in a given period, the number of times you can do the withdrawal. So there is also a restriction being faced. इसके अलावा एक और टाइप का अकाउंट होता है दैट इज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. सो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स आर नथिंग बट द टाइम डिपॉजिट, जहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सेविंग्स अकाउंट. सॉरी. नॉर्मली दिस फिक्स डिपॉजिट्स अकाउंट्स आप जैसे
अगर आपने एज दी नेम इटसेल्फ सजेस्ट, आप डिपॉजिट करते हो और एक लॉक इन पीरियड होता है 1 साल का या 91 डेज का या 6 महीने का. सो डिपेंडिंग अपॉन योर अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट ऑफ द फंडिंग आप ये डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हो. एक बार आप ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में पैसा डालते हो तो जब तक वो टेन्योर, जितने टाइम के लिए आपने पैसा डाला हुआ है, जब तक वो टेन्योर खत्म नहीं हो जाता, यू कैन नॉट विड्रॉ दी मनी. ऑफकोर्स इफ यू वांट इट इज रिडीमेबल, लेकिन आपका कुछ % ऑफ इंटरेस्ट उसमें कट हो जाएगा. जैसे कि अगर आपने 6 महीने के लिए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बना के रखा है, अगर आप 6 महीने के बाद पैसा डाल के एक बार पैसा आपने डाल दिया तो उसको आप कब विड्रॉ कर सकते हो? आफ्टर 6 मंथ्स ओनली. सो इफ यू विड्रॉ आफ्टर 6 मंथ्स, तो जो भी अमाउंट आपने डाला है प्लस वट एवर इंटरेस्ट जमा हुआ है वो पूरे का पूरा आपको मिल जाएगा. इसके अलावा सपोज अगर कोई इमरजेंसी आ गई और आपको तुरंत फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को तोड़ना है तो आप उसको तुड़वा सकते हो. जैसे 6 महीने के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला है लेकिन आपको तीसरे महीने में ही पैसे की जरूरत पड़ गई, तो यू कैन रिडीम इट, यू कैन विड्रॉ दी मनी, लेकिन जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसमें आपको थोड़ा बहुत अमाउंट आपका कट हो जाएगा, यानी इन शॉर्ट आपको पूरे का पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा. सो दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट विच इज एक्सेप्टेड बाय दी बैंक. द सेकेंड मेन फंक्शन दैट इज परफॉर्म बाय द कमर्शियल बैंक इज लेंडिंग ऑफ फंड. सो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जहाँ पे whatever money it is received, the bank has received with the help of deposit, it through that deposit it can grant various types of loans and advances. तो ये जो advances होते हैं, these are the types of advances that can be given by the bank. The very first type of advance is the overdraft. overdraft का मतलब क्या है? जैसे करंट अकाउंट बिजनेसमैन ने मेंटेन किया हुआ है, सो इवन हो सकता है कि उसके फिलहाल उसके अकाउंट में एक भी पैसा अवेलेबल नहीं है, 0 बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है, but still he is in requirement of the fund. ठीक है, businessman. So what they can do on the basis of their current account, they can get the overdraft facility. So overdraft facility मतलब when you withdraw more than what is actually available in your balance, account balance, that is termed as overdraft facility. So it is a long term facility which is provided by the bank to the businessman, ताकि उसका पैसा अटका नहीं रहे, उसका काम अटका नहीं रहे. Apart from overdraft, cash credit is also one of the way of granting a short-term loan to the businessmen so that they are able to meet their working capital requirement. So overdraft and cash credit both are the ways of terms of credit only to be provided to the businessmen. But difference क्या है? Overdraft facilities, it is meant for longer period of time, and this overdraft facility can be used even if the businessman is having 0 balance or negative balance in his account. Whereas cash credit it is meant for very shorter period of time, and if you have a credit balance, then on the credit balance only the cash credit can be provided. इसके अलावा एक और होता है डिस्काउंटिंग बिल्स. नाउ एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके कॉन्सेप्ट है जो आप आपके अकाउंट्स में इन योर फ्यूचर टाइम्स यू आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. तो जस्ट मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स मतलब क्या होता है. नाउ यू माइट हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द 2 कॉन्सेप्ट, डेटर एंड क्रेडिटर. डेटर मतलब कौन है? जिन्होंने उधार लिया हुआ है. क्रेडिटर मतलब कौन है? जिन्होंने उधार दिया हुआ है. सो क्रेडिट डेटर इज ओविंग सम मनी टू द क्रेडिटर. तो यूजुअली क्रेडिटर क्या करता है? दे ड्रॉ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन द नेम ऑफ द डेटर कि भाई आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम 6 महीने या 3 महीने के बाद यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ सो एंड सो अमाउंट टू सो एंड सो डेट एंड सो ऑन. तो इस तरह से वो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना देगा. अब इन रिटर्न डेटर उसको प्रॉमिस दे देता है. तो जब डेटर उसको प्रॉमिस दे देता है, क्रेडिटर ने बिल बना दिया, डेटर ने वो एक्सेप्ट कर लिया, तो इट बिकम्स अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. अब क्या हो गया? 3 महीने के लिए आपने ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दिया, तो क्रेडिटर को तो ये साफ हो गया कि 3 महीने से पहले उसको पैसा मिलने वाला नहीं है. अब समझो अचानक से क्रेडिटर को पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो वो क्या करेगा? 3 महीने वेट ना करते हुए व्हाट ही विल डू, ही विल डायरेक्टली गो टू द बैंक और ये बिल को वो डिस्काउंट करवा लेगा. इसका मतलब क्या है कि नाउ डेटर इन स्पाइट ऑफ पेइंग द मनी टू द क्रेडिटर, नाउ ही और शी विल हैव टू पे द मनी टू द बैंक. सो दैट इज टर्म्ड एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स. यानी आपका टेन्योर पीरियड खत्म होने से पहले ही आप पैसा बैंक से जाके निकलवा लेते हो. सो दैट इज टर्म्स एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स. इसके अलावा होता है टर्म लोन्स. टर्म लोन मतलब व्हेन यू रिक्वायर अ लोन फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, से 5 years, 2 years, 1 year, दैट इज टर्म्ड एज टर्म लोन. एंड इसके अलावा होता है कंज्यूमर क्रेडिट. दैट इज, ये सब हमने ऊपर की जो बातें की वो था बिजनेस पर्सपेक्टिव से. नाउ इवन लाइक बिजनेसमैन, इवन कंज्यूमर्स में रिक्वायर लोन. जैसे उनको नया घर लेना है तो लोन चाहिए, ठीक है, या एजुकेशन करवाना है तो उसके लिए लोन चाहिए. सो दैट टाइप ऑफ क्रेडिट इट इज टर्म्ड एज कंज्यूमर credit.
So these are the lending of funds, the second important function which is performed by the bank. The third important function that is performed by the bank is check facilities. So it is also one of the important service that is provided to the customer by the bank. अब ये जो check होता है, it is a credit instrument. You have already studied about check in your 10th standard economics. So check क्या, it is a negotiable instrument which specifies the date, the name of the party to whom the amount is to be paid, and it is drawn on a particular bank, which is giving an instruction to the bank and order to the bank to please pay the amount of so and so amount to so and so person. So ये जो checks होते हैं, ये मेनली दो टाइप के checks होते हैं. एक होता है bearer check और एक होता है cross check. बेरर चेक का मतलब क्या है, इट कैन बी इजिली एनकैशेबल इमीडिएटली एट दी बैंक काउंटर. जाके चेक बताओ और तुरंत के तुरंत आपको पेमेंट मिल जाएगा. तो जिसके हाथ में भी वो चेक होगा, हुएवर इज बेरिंग द चेक, द अमाउंट विल बी पेड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. जबकि सेकेंड होता है क्रॉस चेक. क्रॉस चेक मतलब जैसे अगर आप चेक देखो तो उसके लेफ्ट साइड में हमेशा दो लाइन गिराई जाती है, स्लैंटिंग लाइन चेक के ऊपर एक कॉर्नर में, तो उसे कहा जाता है क्रॉस चेक. इसका मतलब क्या है, जो पेई होगा उसी को ये अमाउंट पे किया जाएगा, उसके अलावा और किसी को ये अमाउंट नहीं जाएगा. सो क्रॉस चेक्स आर दोस विच आर डिपॉजिटेड ओनली इन दी पेईज अकाउंट. सो दिस इज द थर्ड फंक्शन. द फोर्थ फंक्शन इज रेमिटेंस ऑफ फंड. Apart from this facilities, one more facility that is provided by the bank is remittance of fund. इसका मतलब facility of fund transfer from one place to another. घर बैठे बैठे ही आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में. इजीली रेमिटेंस ऑफ फंड इज पॉसिबल. तो ये यूजुअली किसके थ्रू किया जाता है, बैंक ड्राफ्ट होता है. तो बैंक एक ड्राफ्ट इशू करता है फॉर दी अमाउंट. उनके जो भी ब्रांचेस हो गए दूसरे जगह पे, तो एक ड्राफ्ट इशू करता है एंड देन द पेई वो जाके ड्राफ्ट बता सकता है बैंक ट्रॉई बैंक को, एंड देन द अमाउंट कैन बी इजीली कलेक्टेड. सो दैट इज रेमिटेंस ऑफ फंड. एंड इसके अलावा एक और फंक्शन परफॉर्म करता है. इनके अलावा जो दूसरे टाइप के फंक्शंस भी बैंक प्रोवाइड करता है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, दे आर टर्म्ड एज दी अलाइड सर्विसेज. जैसे कि ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर या ऑन बिहाफ ऑफ दी से बिजनेसमैन बिल्स पेमेंट करना. जैसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपने सुना होगा. ठीक है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ईएमआई वाला कुछ टीवी या कुछ खरीदा है ईएमआई में सॉरी जैसे आपने ईएमआई आपको पे करना है, तो आप बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि हर महीने की इस डेट को आप अकाउंट से ऑटोमेटिकली इतना अमाउंट कट कर सकते हो. सो दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन टू दी बैंक्स फॉर पेमेंट, नॉट ओनली फॉर योर ईएमआईज बट इवन योर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है. ठीक है, कोई भी तरह का बिल है तो वो बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो. सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक. इसके अलावा लॉकर फैसिलिटीज, यानी अगर आपके कोई भी वैल्यूएबल्स है, जैसे नॉट ओनली ज्वेलरीज और इवन कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आप बैंक से एक लॉकर लेके उसमें बाय पेइंग अ नॉमिनल लॉकर फीस यू कैन इजीली कीप योर वैल्यूएबल्स इन दी लॉकर ऑफ दी बैंक. एंड इसके अलावा अंडर राइटिंग सर्विसेज. अंडर राइटिंग सर्विसेज एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे शेयर इश्यूज के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा. तो जस्ट मैं थोड़ा बहुत आपको बताती हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट दैट मच इन डिटेल फॉर यू राइट नाउ. तो जैसे शेयर मार्केट होता है, ठीक है, तो शेयर मार्केट में क्या होता है कि जब भी आप शेयर इशू करते हो मार्केट में, तो लोगों से आप पैसा कलेक्ट कर रहे हो, तो आप ये पैसा किस तरह से कलेक्ट करोगे. डायरेक्ट कभी भी कोई बंदे को जिसको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, ठीक है, तो वो जाके डायरेक्टली आपको कंपनी में आके पैसा नहीं लेगा कि ये पैसा लो और मुझे मेरा शेयर दो. ये किस में से होता है, यूजुअली एक बैंक को एज अ मीडिएटर रखा जाता है कि अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करने हैं शेयर खरीदने के, शेयर के पैसे भरने के लिए, तो आप उसको बैंक में जाके वो पैसा जमा कर सकते हो. तो इट इज अंडर राइटिंग सर्विसेज मतलब क्या, ऐसा मिडल मैन बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर. बैंक ऐसा मिडल मैन फॉर्म करता है जिसके लिए वो एक अंडर राइटिंग कमीशन लेता है. सो अंडर राइटिंग सर्विस. इसके अलावा प्रोस्पेक्टस छापना या टाइम टू टाइम ऑडिटर्स के पास जाके टेस्टिंग करवाना, चेकिंग करवाना, ये सारे काम भी ऑन बिहाफ ऑफ दी शेयर मार्केट या ऑन बिहाफ ऑफ दी कंपनीज ये अंडर राइटिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है. सो दे आर टर्म्ड एज अंडर राइटिंग services. So these are the basic functions that are performed by the commercial bank. Thank you.